marketing mix is the combination of 4 P's. Those are the 4 P's or elements which are known as product, price, place and promotion. Okay, so today we will discuss about goods. What is goods? What are the features of goods and what are the various types of goods? Okay, so goods means goods are tangible items that are either consumed directly or used in the production of other goods. Okay, so goods are tangible items. Tangible means which can be seen, जिसको देखा जा सकता है, छू सकते हैं हम लोग. Okay, so those are called as tangible items that are either consumed directly, means directly consumed किया जाता है, or it is used in the production of other goods. So it indicates two types of goods. One is consumer goods and another is industrial goods or producer goods. Okay, consumer goods are those goods which are consumed directly by the consumers. हम लोग जिसको directly consume करते हैं, like bread, butter. Okay, so this all are called as consumer goods. And industrial goods or producer goods are those goods which are used in the production of other goods, like raw materials, machineries which are being used for producing further goods. Okay, और कुछ बनाने में जिसको यूज किया जाता है, like wood is the raw material. wood से फिर हम लोग different furnitures बना सकते हैं. Goods is bread, butter, toothpaste, soap. Okay, raw materials, everything is coming under the example of goods. Next we will discuss about the features of goods, children. First one is goods are tangible. We have already discussed this in our meaning. Goods tangible होते हैं. Next, number 2 is goods are separable from the producer and seller. Producer and seller से उसको अलग किया जा सकता है. Producer means manufacturer who is manufacturing the product. So manufacture करने के बाद वो sell करता है wholesaler को, wholesaler sell करता है retailer को. So in this way goods are separated, means the ownership is being changed. Okay. Number 3 is goods can be stored. गुड्स हम लोग फ्यूचर यूज के लिए या तो सेल के लिए जैसे स्टोर कर सकते हैं. जैसे होलसेलर परचेज कर रहा है तो होलसेलर उसको स्टोर कर रहा है, फिर कुछ सेल कर रहा है, कुछ रख रहा है. ओके, जो रिटेलर उसको परचेज कर रहा है, देन रिटेलर इज आल्सो कीपिंग सम गुड्स फॉर फ्यूचर. इफ कस्टमर्स वांट देन कस्टमर्स विल परचेज दैट. और जो कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट जैसे होता है तो कस्टमर परचेज कर लेते हैं. So it can be stored. और हम लोग भी एज ए कंज्यूमर हम लोग परचेज करके ना के घर पे भी स्टोर करते हैं कुछ. ओके, नेक्स्ट इज फैक्ट्री मेड गुड्स आर होमोजेनियस इन क्वालिटी. जो फैक्ट्री गुड्स होते हैं दोस आर होमोजेनियस इन क्वालिटी. होमोजेनियस मीन्स सिमिलर इन क्वालिटी. क्वालिटी में उसका कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, दैट इज इक्वल इन क्वालिटी. Next we will discuss about the various types of goods or products. Number 1 is consumer goods. Goods are being classified into two categories. One is consumer goods and another is industrial goods or producer goods. Okay, so consumer goods, as the name suggests, which is used for consumption purpose, which is directly consumed. Okay, used for consumption. And it is meant for personal use generally. जैसे कि हम लोग कोई सोप परचेज करके ला रहे हैं, टूथपेस्ट परचेज करके ला रहे हैं, so that is for our personal consumption. हम लोग खुद अपना यूज के लिए जैसे लेके आ रहे हैं. Okay, so these are called as consumer goods. And producer goods, as we have discussed, raw materials, machineries, जिसको कि यूज किया जाता है for further production. ठीक है. Next we will look at the different types of consumer goods. Consumer goods is again divided into two parts. One is on the basis of durability and another on the basis of shopping efforts involved. Okay. So on the basis of durability, goods are again divided into non-durable goods and durable goods. Okay. And on the basis of shopping efforts involved, it is again divided into three types. One is convenience goods, second is shopping goods, and third one is specialty goods. Clear? So durability. On the basis of durability, goods are again of two types: non-durable and durable goods. So non-durable
नॉन ड्यूरेबल मीन्स जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जिसका शॉर्ट टर्म यूज होता है, दिस आर कॉल्ड एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। मीन्स दिस गुड्स आर कंज्यूम इन वन और फ्यू यूजेस, कुछ यूज उसका कर सकते हैं या तो एक यूज में जो खत्म हो जाता है जिसका ड्यूरेबिलिटी। ओके, दिस आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, बटर, एक बार खा लिए तो खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम खाना चाहिए तो फिर हम लोगों को जैसे परचेज करके लाना है। ओके, सो दिस आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। देन कमिंग टू ड्यूरेबल गुड्स। व्हाट आर ड्यूरेबल गुड्स? द गुड्स व्हिच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबा टाइम तक जैसे जो गुड्स को हम लोग यूज करते हैं, those are called as durable goods. Okay, एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, जैसे हम लोग टीवी परचेज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन परचेज कर रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, ओके, स्कूटर, बाइक, व्हाटएवर यू कैन टेक द एग्जाम्पल, दिस आर ड्यूरेबल गुड्स, मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग पीरियड के लिए जैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, shopping efforts involved. Consumer goods are divided into two parts. One is durability, another is shopping efforts involved. So on the basis of shopping efforts involved, it is again of three types. One is convenience goods, second one is shopping goods, and third one is specialty goods. Okay, so convenience, shopping and specialty, all the meaning signifies in its name only. जैसे कि कन्वीनियंस गुड्स कौन सा गुड्स है, जो कि हम लोग कन्वीनियंटली अपने नियरर स्टोर से परचेज कर सकते हैं। सो दिस गुड्स आर परचेज फ्रीक्वेंटली विथ मिनिमम एफर्ट्स, कम एफर्ट्स लगा के फ्रीक्वेंटली जो गुड्स हम लोग परचेज करते हैं, दोस आर कॉल्ड एज कन्वीनियंस गुड्स। ओके, एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो आगे ही डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं जो हॉकर्स रहते हैं। सो ब्रेड, टी, you can take the example, these are convenience goods which we are purchasing from our near retailer. Okay, nearer retailers. Next, shopping goods. Shopping means जिसको कि हम लोग प्लानिंग करके, कंपेयर करके, एक कंपेरेटिव एनालिसिस के साथ परचेज करते हैं। ओके, so shopping goods are those goods which are purchased after a comparative analysis of quality, quantity, price, warranty period, everything. ओके, सो दिस आर कॉल्ड एज शॉपिंग गुड्स, जिसको हम लोग कंपेयर करके लेते हैं। जैसे हम लोगों को एक साड़ी परचेज करना है, एक सूट परचेज करना है, तो भी हम लोग 5 दुकान जाके डिफरेंट आइटम्स देखते हैं, फिर क्वालिटी क्या है, कपड़ा कैसा है, प्राइस क्या है, ये सारा चीज़ों को कंपेयर करके फिर हम लोग जैसे परचेज कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ शॉपिंग गुड्स, क्लॉथ, वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस आर शॉपिंग गुड्स। जब हम लोग शॉपिंग करने ये सारे गुड्स का जैसे जाते हैं तो हम लोग एक प्लान करके जाते हैं कि इतना बजट रहेगा, ड्यूरेबिलिटी इतना होना चाहिए, ये कलर का लेके आएंगे। सो ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट, स्पेशलिटी। स्पेशलिटी गुड्स मीन्स दोज गुड्स विच आर परचेज्ड विथ स्पेशल एफर्ट्स, जिस गुड्स को कि कुछ स्पेशल एफर्ट्स देके हम लोग परचेज करते हैं। स्पेशल एफर्ट्स मीन्स बहुत सारा पैसा जमा कर करके हम लोग सपोज एक सामान ले रहे हैं, मीन्स दैट इज ज्वेलरी, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ज्वेलरी, जैसे गोल्ड ज्वेलरीज हो गया, डायमंड ले रहे हैं और फैंसी आइटम्स कुछ ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग एट ए टाइम परचेज नहीं करते हैं, जैसे स्पेशल एफर्ट्स के द्वारा ही उसको परचेज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल लुक एट द फीचर्स ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स goods. Okay, convenience, shopping and specialty goods. So we will look at one by one features of convenience goods. Number 1 is this convenience goods are regularly and continuously demanded. Regular and continuous, जैसे सोप, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सारा तो रेगुलर हम लोगों का यूज में आता है, ब्रेड, बटर कुछ भी ले रहे हैं। ठीक है, सो रेगुलर डिमांड में रहता है, कंटिन्यूस डिमांड में रहता है, एंड दिस आर डेली यूज प्रोडक्ट्स। डेली यूज प्रोडक्ट्स रेगुलरली हम लोग को ये सुबह उठते हैं तो जैसे पेस्ट का हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है, देन सोप जरूरी होता है, डिटर्जेंट पाउडर, सो एवरीथिंग वी नीड डेली। नेक्स्ट इज दिस गुड्स आर परचेज्ड इन स्मॉल यूनिट्स एंड एट लो प्राइस। स्मॉल यूनिट्स कम, जैसे एक सोप ले आए, 3 सोप ले आए, सो स्मॉल यूनिट्स में परचेज कर रहे हैं और उसका प्राइस भी लो ही रहता है। जैसे एक न्यूज़पेपर लेंगे, 5 न्यूज़पेपर तो नहीं लेंगे एक फैमिली में, वैसे ही सोप का भी जितना रिक्वायरमेंट होता है, एक चाहिए तो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है,
Next is shopping goods. What are the features of shopping goods? Number one is durable in nature. So shopping goods जो लेते हैं, जैसे कपड़ा खरीद रहे हैं हम लोग, या तो व्हीकल ले रहे हैं, कुछ भी बाइक ले रहे हैं, तो उसका क्या होता है, वो ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग, हम लोग लेके 10 साल 15 साल जैसे चल जाए। कोई टीवी ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, तो हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। नंबर 2 इज दिस गुड्स आर परचेज्ड विथ प्लानिंग। ये हम लोग डिस्कस किए थे पहले भी, प्लानिंग करके शॉपिंग जैसे करते हैं हम लोग, सो प्लानिंग के साथ ही परचेज किया जाता है। एंड इसका यूनिट वैल्यू हाई रहता है, जैसे कि हम लोग वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं 15,000 20,000, तो एक मशीन ले रहे हैं तो 20,000 उसका पे कर रहे हैं जैसे, तो यूनिट वैल्यू एक पीस का वैल्यू ज्यादा रहता है। नेक्स्ट इज स्पेशलिटी गुड्स। सो इन केस ऑफ स्पेशलिटी गुड्स व्हाट आर द फीचर्स? Number 1 is this goods are called as luxurious goods, okay, or luxurious goods you can say. Number 2 is this goods are demanded in limited quantity. तो ज्वेलरी जब लेने जाते हैं तो एक पीस से ऐसे बहुत दिन के बाद हम लोग जैसे एक परचेज कर रहे हैं, 1 ईयरिंग परचेज कर रहे हैं, एक रिंग परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लिमिटेड क्वांटिटी में और कुछ कम ही लोग उसको जैसे परचेज करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, सो इट्स डिमांड इज लिमिटेड। नेक्स्ट इज the unit price is very high in case of specialty goods. So specialty goods में क्या होता है, यूनिट प्राइस में एक भी चीज ले रहे हैं, एक सामान ले रहे हैं, एक सामान का कॉस्ट ज्यादा रहता है और शॉपिंग गुड्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट the various types of goods children. In next class we will discuss about the industrial goods. Okay, thank you.